Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect you all. To the all special one who has subscribed their happiness with my happy universe, Shalini one. Thank you very much to all the respected elder ones, younger ones. Thank you very much being with us. And you know me actually, who's am I? I am Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in an on channel of blessings, grace, and happiness. So, friends, what I have for you. Before that, let's start what we have discussed till now. We have discussed with the thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you for my lovely one who is watching us right now, showering their lots of time on us. We really mean a lot your time. Thank you. So, friends, if you're new on my channel, I want you just be become a member of my happy universe by just keep smile in your face, be gratified for yourself, and just comment in the comment section. Write the thank you just only for yourself because nobody is like you. We never create any other person like you. Everyone is having a unique specific qualities in them, so we can respect each and everyone's existence, because when we just respect each other, we are just respecting the creator. So first of all, just respect yourself, respect your existence, and be happy for your life, because happiness within ourselves, when we reflect the real happiness to ourselves, we really reflect on each other. So one vibration of happiness will go to the universe, it will come back to you, and you just reflect on my happy universe, Shalini one. So let's start what we have discussed till now. Friends, we have discussed with all aspects of the health, our mental health, emotional health, our body, mind, spirit, who we all are. We all are spirits. Our spirit mission has completed, law of love, law of attraction, difference between all of them, and who we just what is the meaning of our happiness, how we can be happy within ourselves, above us, what things the matters in our life, that is the happiness. Above happiness, I am the power of my happiness and joy. After that, I am the power of होप। आज क्या है खास, और अगली अब कौन सी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो उसके लिए भी आप बने रहिए, और क्या लिखा है मैंने आपके लिए वो भी ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बता देती हूँ आपको। आपने सुना होगा विजेता और जीतना, विक्टोरियस और विनर। आर यू विक्टोरियस और विनर? क्या हैं आप, जीतने वाले या फिर विजयी? बताऊं आपको, देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है आज। विक्टोरियस और विनर, क्या बातें हैं तो दोनों ही बातें बड़ी जीतने से रिलेटेड ही, लेकिन एक्चुअली में क्या मतलब है इनका, हम क्या समझ रहे हैं, तो चलो बताती हूँ। विजय या विजेता, विजयी या विजेता। विजय मतलब मैं सदा ही विजयी हूँ, अगली बार इससे मैंने ही जीतना है, या इस गेम कोई भी प्रेजेंटली अगर आपके पास एक टास्क है तो आप उसको लेकर, अगर आप कोई गेम जीत जाते हो, आप क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, हु इज़ द फर्स्ट, हम ऐसे करते हैं ना, हु इज़ द विनर, हु इज़ द फर्स्ट रनर अप, हु इज़ द सेकंड रनर अप। लेकिन इन सब बातों से ऊपर भी क्या है, विक्टोरियस। कैसे, बताती हूँ। इसके साथ मैंने लिखा है लाइफ इज़ अ गेम या संघर्ष, जिंदगी एक खेल है या फिर सच में ही स्ट्रगल है। कितना सच है ये, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू की भी करते हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर रिस्पेक्टफुली देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा है, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, विजयी बनने के लिए हमें कई बार हारना भी पड़ता है। विजयी बनने के लिए, जीतने के लिए नहीं, विजयी बनने के लिए हमें हारना भी पड़ता है। चलिए बात करते हैं कैसे। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कितने रोल्स होते हैं हमारे, और रोल क्यों होते हैं? लाइफ इज़ रियली अ गेम, लाइफ रियली में एक गेम है, ज़िंदगी एक गेम है। जब आप ज़िंदगी के हर एक संघर्ष को एक रोल की तरह लेते हो और एक गेम की तरह लेते हो, तो आपको लाइफ को समझना उतना ही आसान हो जाता है। अब हमारी ज़िंदगी में हमारी हर एक के साथ इस गेम में कितनी टर्न आती है, बताएं। चलिए, सबसे पहले तो जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, हमारी फैमिली में हमारी पहली गेम होती है। हमारे फैमिली में हमारे रोल्स होते हैं, अलग अलग तरह के हमें रोल्स मिलते हैं जिसको हम प्ले करते हैं। चाहे अगर आप एक मदर है, चाहे आप एक फादर है, चाहे आप डॉटर है, कुछ भी हैं, आप उस रोल के प्रति अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी लाइफ में बहुत सी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिनको निभाना भी ज़रूरी होता है, या जिनके ऊपर आपको स्ट्रगल के ऊपर अवव भी होना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं।
नहीं छोड़ते ना। हम कहते हैं कि हमें रिश्तों में कई बार हारना पड़ जाता है। एग्जाम्पल, हम कई बार बहुत बार ऐसी सिचुएशंस देखते हैं अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि अगर दो पर्सन की लड़ाई होती है तो ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों में से किसी ने एक को तो झुकना ही पड़ता है, चाहे वो लड़ाई होती है चाहे वो कुछ भी होता है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होता ना कि दोनों ही नहीं बुलाते। एक हमने सॉन्ग भी सुना था कि पंजाबी में सॉन्ग था, मैं उसको सिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पंजाबी सॉन्ग इतने अच्छे से गाने नहीं आते, बट आई लव पंजाबी सॉन्ग ऑल्सो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर दोनों में से दोनों ही रूठ जाएंगे तो मनाएगा कौन? कौन मनाएगा? तो दोनों में से किसी एक को तो हारना ही पड़ेगा ना, और उस हार में भी उसकी जीत होगी। तो मैंने कहा कि विजयी होने के लिए हमें कई बार हारना पड़ता है। क्यों हारना पड़ता है? क्योंकि लाइफ में हमारे जो रोल्स है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सम टाइम उनके आगे कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जहाँ पे हम कई बार जीत कर भी हार जाते हैं और कई बार हार कर भी जीत जाते हैं। अगली बात बताती हूँ। इन सब बातों से ऊपर फ्रेंड्स, अगर आप सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी में किस तरह के जो चैलेंजेस है जो हमारे पास आते हैं, भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ जाता है फैमिली के लिए, और आपका फैमिली में रहना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो लोग हैं, सोसाइटी है, एंड स्पेशली इन द इंडिया, हमें ये बात बोलने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि सच बोलना हमेशा ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर एक इज्जत के साथ सच बोला जाए तो उस सच को कोई नहीं जुटला सकता। हम समझते हैं कि हर चीज़ में बहुत सी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हर एक पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये कितना सच है कि ऑलवेज, क्या आपके लाइफ टाइम हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ हमारे लिए करते रहेंगे? क्या हमें अपने लिए कभी कुछ ज़िंदगी में स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा? आखिर क्या ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम भी आता है जब आपको सिर्फ अपने आप को थैंक यू बोलना होता है? क्यों? बताऊंगी आपको एक दिन ज़रूर। एक टाइम ऐसा भी आता है, अबव ऑल, अबव पेरेंट्स भी कोई चीज़ है। मैं पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हम तो पेरेंट्स का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, लेकिन ऐसी बहुत सी आपकी लाइफ का स्ट्रगलिंग टाइम होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं जानता आपकी लाइफ में, इनफैक्ट ना आपके पेरेंट्स। तो उस थैंक यू के हकदार आप होंगे। आपने बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जिन्हें आपने अकेले टैकल किया और आपके पेरेंट्स को कभी खबर भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं? क्या उस सिचुएशन में भी आप स्ट्रॉन्ग थे? हम अपनी लाइफ में हर एक रोल, इस दुनिया में हमारा एक ही मिथ है। वो मिथ क्या है? कि हमें लगता है कि शायद सामने वाला बहुत खुश है, या फिर हम अपने फ्रेंड्स में देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनके स्ट्रगल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनकी ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर हम बीमारी में लड़ते हुए किसी कैंसर पेशेंट को देख लेते हैं, तो एक बीमारी से निकले हुए पेशेंट को, और एक उस बीमार पेशेंट, वो एक बीमारी से निकला हुआ पेशेंट बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा, जो बहुत से लोग हॉस्पिटलों में तड़प रहे हैं। वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, एक और बात, एक ऐसा पर्सन जिसने फैमिली में बहुत से दुख देखे हो, लेकिन हाँ, उस दुखों के बावजूद भी उस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से कभी गिव अप नहीं किया और स्टिल दे आर जस्ट मोटिवेटिंग, ऐसे बहुत से लोगों को हम देख सकते हैं। ब्रोकन होम फैमिलीज़ को देख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी टूट कर भी जुड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। हम बहुत ऐसी चीज़ों में देखते हैं जहाँ पे आप अपने घर वालों के लिए, आप अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। देन प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट दैट। हम कभी भी अपने आप को मारकर किसी को खुशी नहीं दे सकते। हमारी असली खुशी क्या है? हमारी असली खुशी सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में आए गए इस इंसान को, या इस दुनिया में इस देखने वाले इंसान के लिए ही सबसे बड़ी खुशी। और उसे खुश नहीं किया तो दिखाने वाले को और जिसने हमें बनाया है उसके पास भी एक रिकॉर्ड होगा कि तुमने आखिर इस इंसान के लिए क्या किया। हम यही कहते हैं ना, हम यही सुनते आए हैं आज तक कि आखिर हमने दूसरों के साथ बुरा कर दिया। क्या हम अपने साथ कभी भी बुरा नहीं कर जाते? कई सिचुएशंस में कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर जाते? आखिर क्यों करते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़? आखिर क्यों करना है हमें त्याग? क्यों हम अपने लिए नहीं जी सकते? हमें अपने आप के लिए सोचना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना। जब हम अपने लिए पॉजिटिविटी में, ट्रूथफुलनेस में अच्छा सोचेंगे, बिना किसी का बुरा सोचे, देन ऑटोमेटिकली ही सामने वाले इंसान के लिए हम कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकते। सो जस्ट रियलाइज योर वैल्यू। जब हम अपनी वैल्यू को समझ जाते हैं और अपने मन पे कंट्रोल करके, क्योंकि जब मन को ही हमने शांत कर लिया, क्योंकि ये मन है ना जो हमसे पाप करवा देता है, लेकिन जब मन ही हमारा कंट्रोल में, तो वो ऐसी डिज़ायर्स, वो ऐसे कंपैरिजंस या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ आपको कभी करने ही नहीं पड़ेंगे। जो चीज़ें हमारे लिए, वो हो सकता ही नहीं कि वो हमारे पास ना आए। फ्रेंड्स, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। बहुत वाले आने वाली सीरीज़ में हम आपके साथ बहुत से टेस्टामेंट्स के साथ बात करेंगे, बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे और लाइवली भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जिनको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ माय हैप्पी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नेवर गिव अप योर विद योर ड्रीम्स, क्योंकि आप हैं
तो सब कुछ है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी वन, जस्ट बी योर सेल्फ। जो अपना है वो सबका है, जो अपना नहीं है वो किसी का नहीं बन सकता। सो जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट लव योर सेल्फ। और हाँ, हारिए आप, हारिए आप इज्जत से, हारिए आप अपने उन रिश्तों में जो आपके लिए बहुत प्रीशियस हैं, लेकिन कभी मत हारिए अपनी खुशी के लिए, क्योंकि जब हम अपनी खुशी के लिए ही नहीं जी पाए तो हम अपने लिए कभी नहीं जी पाएंगे। जस्ट लव योर एंड जस्ट लव अदर्स, सो वी कैन सर्व द रियल लव टू each other and we can love the universe. Yes, be touch in with my happy universe and stay very blessed and thank you very much for your precious love and time. And friends, अगर आपको कोई भी ऐसी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि फ्रेंड्स हम सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी के इन पहलू पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं जो ना जाने आज कितनी ही सुसाइड्स करके ख़त्म हो जाते हैं, ना जाने अपनी लाइफ को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब एक दूसरे के लिए बहुत सी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो करेंगे हमेशा आगे आने वाली ज़िंदगी भर ऐसी बातें, आखिर क्या सब कुछ देखकर हम कैसे जी जाते हैं, जानेंगे। तब तक के रखिए अपना ख्याल, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।